Hello, my dear friends. According to our previous lecture discussion, see, you have to write two questions in homework. Later on, I will give you hints regarding this, and that is give difference between elements and compound. You know very well. Elements are the same type of atoms. Compounds are the combination of two or more than two elements. Elements retain its original property, compounds in which elements lost their original property. Minimum 3 points of difference you have to write. What is the difference between compound and mixture? Okay. In compound, elements are combined with a specific ratio. In mixture, different compounds or elements are not combined in a specific ratio. In compound, each element lost their original property. In mixture, each element and compound retain their original property. In both I have given you two differences. Another difference is find yourself. Okay. So do yourself. Minimum 3 differences you have to identify. Refer your note and write down differences. Now this is not a question. Before starting new questions, I have to discuss something with you, which is a topic of physical chemistry, which is the combination of physics and chemistry. Okay. See, properties of matter. Properties of matter is what? See, when we observe any person, then we can observe that person by two ways. First is out appearance. Okay, like that when you observe any substance, then how that substance look like. Means what is its boiling point, what is its melting point, what is its density, then color. See here, physical properties. Physical properties means just observation without making any change in that substance. It is also called physical quantity. उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है और सिर्फ देख के या तो थोड़ा कुछ उसको टेस्ट करके उसका ऑब्जर्वेशन करके हम क्या क्या बता सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो आई हैव रिटन हियर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी. उस कंपाउंड की आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए और कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, जैसे कि हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं, डेंसिटी मेजर करते हैं, कलर देखते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं, उसका टेस्ट कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है. ठीक है, ये टेस्ट है. सोर है, बीटर, टेस्टलेस, लाइक दैट. कलर means blue color, green color, yellowish green color, colorless. Okay, and state means physical, either it is a solid or liquid or gas. Okay, here we don't have to discuss another two physical state, that is the Bose-Einstein condensation and plasma. Okay, that is not in the syllabus of chemistry. So these all are the physical properties. Physical properties means when you look at any person and how it look like. See, you cannot predict about the nature of that person without identifying some reactions with that person. Okay, so physical properties are very easy property to measure. Another property is a chemical property. So chemical properties which can be measured or observed, या तो आप उसको measure करोगे या तो आप उसको सिर्फ observe करोगे by different chemical reactions. This is nothing but we have to study in chemistry. Okay, by chemical reaction क्या क्या हम measure करेंगे? Either that compound is acid or base. ठीक है, either that compound is a combustible or non-combustible or supporter of combustion. Some characteristic chemical reaction. ये list my dear student बहुत लंबी है. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सब में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड ही काम करना है.
इसका रिएक्शन इसके साथ कैसा होगा, उस कंपाउंड के साथ कैसा होगा, ये लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, पीएच इसकी कितनी होगी, पीओएच कितनी होगी जो आप 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। और कुछ टर्म्स इस साल इन्वॉल्व होने वाली है जैसे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एक्सेट्रा। तो काफी कुछ इसमें है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा जो समझाने का क्राइटेरिया वो सिर्फ आपको इतना ही समझाना है कि केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, उसमें सब्सटेंस पूरा चेंज हो जाएगा तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो देन आफ्टर द क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग मेजरमेंट। जो आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हो तो आप कहते हो कि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आदमी अच्छा नहीं लगा, ये मुझे ठीक लगा, ठीक है। तो उसको किसी ना किसी फॉर्म में आपको मेजर करना होता है। जैसे कि आप किसी को देखते हैं तो कहते हैं को ये बहुत लंबा आदमी है, ये बहुत ही छोटा है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। तो इसमें क्या है कि एडजेक्टिव्स आते हैं। आप जब मेजर करते हो ना तो इसमें एडजेक्टिव्स का आप यूज करते हो। ये कंपेरिजन, साइंस में से कंपैरिजन नहीं होती है, इसमें आपको परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। तो इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो ये रूटीन लाइफ है उसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं। तो आप मार्केट में जाते हो तो हम सब्जी लेते हैं तो वेट मेजर करते हैं, ठीक है। मिल्क, केरोसिन एक्सेट्रा, कोई लिक्विड पेट्रोल जो हम परचेस करते हैं तो हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। हम कोई ड्रेस मटेरियल लेने के लिए जाते हैं तो हम लेंथ ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और कोई बोतल ऐसी है गैस बोतल तो हम प्रेशर मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर है। जैसे कि आप डिओ स्प्रे लेते हो, प्रेशर नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी ने यूज कर लिया, तो उसमें आप प्रेशर मेजर करते हो। लेकिन परफेक्ट वैल्यू आपके पास प्रेशर की नहीं है, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करते हो कि प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बाद में डेंसिटी, कोई सब्सटेंस आप हाथ में लेते हो, जैसे कि आपके एक हाथ में मेटल ब्लॉक है और एक हाथ में कॉटन है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेटल जो है वो हैवी है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कॉटन जो है वो लाइट है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन आपके पास एक बात ध्यान रखना कि परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ये सब क्या है कि मेजरमेंट है, ये भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे मुझे मेन क्वेश्चन के ऊपर जाना है। प्रेशर, डेंसिटी और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने ये भी पढ़ा है जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, आयोनिक चार्ज कितना, आयंस पढ़े हो केमिस्ट्री में, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आप कोई चीज आप मानो कि शरबत पीते हो तो किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को शुगर कम चाहिए, ठीक है, किसी को शुगर फ्री चाहिए, तो उसमें हम क्या है कि अप्रोक्सीमेट डालते हैं कि भाई आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो पत्ती कम डालना चाय की, और आप बोल रहे हो कि उसमें शुगर कम डालना, तो इसको बोलते हैं कम या ज्यादा केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन साइंस में परफेक्ट होना चाहिए। हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम थोड़ा कम, ठीक है, और ज्यादा ऐसा करके चला लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट, ओके। तो जो भी सब्सटेंस, ऑल दीज सब्सटेंसेस इन विच मेजरमेंट कैरिड आउट, ठीक है, जिसमें भी हम मेजरमेंट करते हो, कोई सब्जी हो या तो मिल्क हो या तो केरोसिन हो या तो पेट्रोल हो या कोई ड्रेस मटेरियल हो, ठीक है, तो जिसमें भी आप मेजरमेंट देते हो तो उस सब को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ये सब जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी ऐसा वर्ड दिया जाता है, ठीक है। जिसका भी मेजरमेंट है, मानो कि मेरे हाथ में ये चौक है, इसको मैं मेजर करूंगा कि कितनी लंबी है, इसका डायामीटर कितना है, ठीक है, तो ये चौक मेरे लिए क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो ये माई सेल्फ फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसका भी मेजरमेंट करना है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि टेक अ पीस ऑफ पेपर, ओके, एक पेपर का हमने पीस ले लिया, तो क्या करना है आपको, ले अ पीस ऑफ पेपर पैरेलल टू सेंटीमीटर स्केल, आपके पास जो स्केल है उसको पैरेलल पेपर को रखना है, ठीक है, और उसके बाद देखना है काउंट द नंबर ऑफ मार्किंग ऑफ द स्केल, उस स्केल के ऊपर जो मार्किंग है उसका नंबर देखना है।
चलो मैंने एक पेपर लिया, उसका मेरा ऑब्जर्वेशन है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपको यूनिट से पता चल गया कि मैंने लेंथ मेजर की है, और मेरी लेंथ कितनी है पीस ऑफ पेपर की, 12.6 सेंटीमीटर। तो इसमें से आपको ये समझ में आया कि एक तो मुझे डिजिट चाहिए, दूसरा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट आई रिक्वायर स्पेसिफिक यूनिट, ठीक है। तो तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन चीजों की। और एक बात बता दो कि यही पेपर, पीस ऑफ पेपर अगर तीन स्टूडेंट्स को दिया जाए तो तीनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग आएगा। कोई बोलेगा कि मुझे तो ये 12.5 दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा कि मुझे 12.3 दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा 12.7 दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा 12.6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड for one is the digit, second one is proper unit, and third one is the accuracy and precision. कोई चीज है, जैसे आप ड्रेस मटेरियल सिलाने के लिए जाते हो, अगर उसमें वो रैंडम मेजरमेंट करेगा तो वो फिटिंग नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इट इज डिपेंड अपन, कभी कभी आप बोलते हो कि मैंने वहां पे सिलाया तो फिटिंग मेरा जो है ड्रेस का मस्त आ गया, वहां पे सिलाया तो फिटिंग ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरा कपड़ा और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेलर था उसने एक्यूरेसी से मेजरमेंट नहीं किया। तो अभी मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूं। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि मेजरमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। मेजरमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कितना मेजरमेंट है इसके लिए नंबर चाहिए, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। अगर किलोग्राम बोलता हूं तो सीधा आपका पता चल जाएगा कि मैं वेट मेजर कर रहा हूं। अगर मैं मीटर सेंटीमीटर बोलता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं। मैं लीटर बोलूंगा या ml मिलीलीटर बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वॉल्यूम मेजर कर रहा हूं। तो थ्री थिंग्स नेसेसरी फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट। फर्स्ट आई रिक्वायर परफेक्ट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कितना वैल्यू। उसके बाद जो मेजर कर रहा है उसकी एक्यूरेसी और प्रिसिजन, ओके। कोई देख नहीं पाता है, ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट है थोड़ा वीक आ रहा है, ऐसा नहीं। आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जब करेंगे, स्कूल जब चालू होगी तब, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सभी बच्चे अलग अलग रीडिंग लेके आते हैं। उसका मतलब क्या कि कोई एक्यूरेट होता है तो उसका रीडिंग प्रिसाइज नहीं होता है, कोई किसी का रीडिंग प्रिसाइज होता है तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं होता। एक्यूरेट रीडिंग मानो कि 5 है, वो लेके आता है 7, तो हर बार वो 7 लेके आता है कि मतलब कि वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं ला रहा है, प्रिसाइज कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों, साइंस में भी ये दोनों जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप साइंस इफेक्टिवली करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एनआईटी इंजीनियर, आईआईटी इंजीनियर, एमडी, सर्जन बनना चाहते हो, तो लाइफ में दो चीजें भी जरूरी है। एक तो आपके लाइफ में एक्यूरेसी होनी चाहिए और आप हर एक अपने डिसीजन पे प्रिसाइज होने चाहिए कि नहीं हर हाल में ये मैं करूंगा ही। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका यूनिट चाहिए, आइदर किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, डेंसिटी है तो ग्राम पर ml एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा यूनिट का, ये भी क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं थोड़ा आपको यूनिट के बारे में बता दूं। ये नंबर मैग्नीट्यूड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। अब पहले देखते हैं ये थर्ड पॉइंट, यूनिट। अब आप 9th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। यूनिट्स आर जनरली FPS unit system, CGS unit system, MKS unit system, and SI unit system. And this SI unit system is the internationally accepted unit system worldwide. Okay, so you have to stress, means this one is the most important part. If you don't know anything regarding foot, pound, second, centimeter, gram, second, meter, kilogram, second, in these three systems, if you are not interested, then don't worry. But SI unit system is important, and according to my knowledge also you have studied SI unit system in standard 9. फिर भी मैं फिर से भी लेना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगे कि ये तो रिपीट है, 9th में पढ़ चुके, लेकिन मुझे एक बार कंफर्म करना है और एक बार बता देना है कि ऐसा ऐसा है। बाद में जो हम डिटेल में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूनिट क्या है?
तो यूनिट में बी डिफाइन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस chosen to measure or express any physical quantity. स्टैंडर्ड रेफरेंस, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल दूं. स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या? मुझे वेट मेजर करना है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस है किलोग्राम. मुझे लेंथ मेजर करनी है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस उसके रिलेटेड है मीटर. मुझे वॉल्यूम मेजर करना है तो आप किलोग्राम से ग्राम में जाते हो तो कन्वर्जन. लेकिन हर एक क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड, जैसे आप करंट मेजर करते हो तो स्टैंडर्ड इसका जो रेफरेंस है वो है एम्पियर. ठीक है. तो यूनिट की ये डेफिनेशन है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको एक रेफरेंस से मेजर करते हो तो उसको हम बोलेंगे यूनिट. यूनिट्स आर टू टाइप्स, बेसिक यूनिट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. And from basic units, other units are derived. They are called derived units. So units are two types. Basic units means fundamental units, and derived units means the units which are derived from basic units. ठीक है. ये पूरा आप अपनी बुक में लिख लीजिए. Okay. Now, as I explained you what are the basic units and derived units. Basic units means the units from which other units can be derived are called basic units. जैसे कि length, mass, etc. They are the basic unit. Length, mass, time, all these 7 listed here, they are the basic unit. ठीक है. Derived unit, the units which are derived from basic units, they are called the derived units. As for example, volume. Volume is nothing but the meter cube. Area is nothing but meter square. Meter multiplied by length multiplied by breadth. Here length multiplied by breadth multiplied by height. Density is equal to mass divided by volume. Mass divided by volume. ठीक है. तो ये जो तीनों यूनिट है, काफी यूनिट है, लेकिन मैंने यहाँ 3 एग्जांपल आपको दिए हैं कि वॉल्यूम, एरिया एंड डेंसिटी. These are the derived unit from these fundamental units or basic unit. एक ठीक से देख लीजिए दोनों डेफिनेशन. ये यूनिट जो है ऐसा यूनिट सिस्टम में एक्सेप्टेड यूनिट है और इसी यूनिट का यूज करके कुछ यूनिट डिराइव किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट. ठीक है. तो अब लिस्ट आउट 7 बेसिक यूनिट्स. ओके, चलिए हम लिस्ट करते हैं. जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप जरा उसको देख लीजिए. तो 7 ये बेसिक यूनिट है. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर में यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसका एब्रिविएशन है लेंथ एल, ये मास, ये टाइम, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई कैपिटल टी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज IV, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन. ओके, उसका नाम यूनिट का मीटर किलोग्राम. ये नेम जो है वो यूनिट नेम, फंडामेंटल यूनिट्स, मीटर किलोग्राम. टाइम जो ये क्वांटिटी का सिंबल, ये यूनिट का नाम है और यूनिट का सिंबल मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम केजी, सेकंड एस, एम्पियर ए, केल्विन के, कैंडेला CD एंड मोल MOL डॉट, लाइक दैट. ओके, तो आप ये लिस्ट कर लीजिए 7 बेसिक यूनिट्स. हेलो माय फ्रेंड्स, अगर ये पूरी क्वांटिटी आपको याद रखनी है तो मैं एक मेमोरी एड आपको दे रहा हूँ. उस मेमोरी एड के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा. एक लड़की जो है वो अपनी मम्मी के साथ किचन में रसोई बना रही है और मम्मी बोल रही है कि ये तो कैसे आलू लेके आई, ये तो बहुत ही सॉफ्ट. तो वो लड़की वो जो है ना उस कंटेनर में से, बास्केट में से एक अच्छा आलू निकाल के बोलती है कि ले माँ, लेंथ मास. तो बोलती है कि सॉफ्ट आलू, ये टाइट, ये स्पेलिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है. टाइट आलू, आलू मीन्स पोटैटो. ओके, अब देखिए 7 क्वांटिटी आपकी इसमें आ रही है. ले बोले तो लेंथ, ये माँ बोले तो मास, TITT टाइट, TI मीन्स टाइम,
E means electric current, this capital T means thermodynamics temperature, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये A means amount of substance, आप इसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, और LU means luminous intensity. ओके, तो इस फॉर्मूला, ये मेमोरी एड है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है, इसकी कई हेल्प से आप ये 7 क्वांटिटी को याद कर सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.